محبت کے دیوانے بھی بنے رہتے ہیں، لیکن اتنی تمہیں محبت ہے، اتنی آقا سے دیوانگی ہے، تو پھر ہمارے آقا ہمارے مولا کے وہ جو خاص علم تھے اسے اپنانے میں تمہاری حالت پست کیوں ہو جاتی ہے؟ اسے اپنانے میں تمہاری حالت کیوں خراب ہوتی ہے؟ تم اسے کیوں نہیں اپناتے ہو؟ تم اسے اپنانے میں کیوں کتراتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ اتنے دیوانے ہو اپنے آقا کے، اتنے دیوانے ہو اپنے مولا کے، اتنی دیوانگی رکھتے ہو، درود و سلام صبح شام پڑھتے بھی ہو، اور ہر وہ شریعت کے عمل پر تم شریعت کے جو احکامات ہیں اس پر عمل پائرہ رہتے ہو، تو پھر حضور پاک کا جو ذاتی علم تھا، جو باطنی علم تھا، اس پر تمہیں عمل کرنے میں، اس پر چلنے میں تمہیں شرم کیوں آتی ہے؟ کارن ہے کہ تمہاری ہمت ٹوٹ جاتی ہے یہ دیکھ کر اور یہ سوچ کر کے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری علوم، ان کی زبانی علم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، سکھایا، جسے شریعت کی علم، شریعت کی تعلیم کہتے ہیں، اس علم کے ساتھ جن جن لوگوں نے حضور نبی پاک کا وہ ذاتی علم بھی اختیار کیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاص ذاتی علم تھا، جسے علم باطن کہتے ہیں، جسے روحانی علم کہتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ وہ ذاتی علم، روحانی علم بھی لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سکھایا، اور اس پر لوگوں کو عمل پیرا بھی کرایا، لوگ رہیں، لوگ اس پہ عمل پیرا بھی رہیں، اس پہ عمل بھی کیے۔ تو جن جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ظاہری علم، زبانی علم، جسے شریعت کا علم کہتے ہیں، اس علم کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی علم، یہ دل والا علم بھی جو ذاتی علم کہلاتی ہے، اس علم کو بھی اختیار کیا اور اس پر عمل پیرا رہیں، اور اس پر پوری زندگی جن لوگوں نے چلا، خود کو چلائیں، تو ایسے لوگ ہی در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجلی امتی مومن بندے کہلائیں۔ اور جن لوگوں نے شریعت کے علم پر ہی قناعت کر کے رہیں اور ٹھان لیا کہ نہیں، ہم یہ روحانی علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی علم ہم کیوں بھلا اختیار کریں، ہم یہ علم ہم سے بہت ہی کٹھنائی گزرے گی اور ہم بہت سے چیزوں سے ونچت ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں کو دنیا زیادہ پسند تھا، دنیا میں زیادہ وہ ملوث رہنا اور دنیا داری میں رہنا، دنیا دار ٹائپ کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ ٹھان لیا کہ اگر ان کی یہ ذاتی علم، یہ روحانی علم اگر اپنی جیون میں لاگو کریں گے، لائیں گے، تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو حضور ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حالات زندگی تھا، ویسا ہی حالات زندگی ہمارا بھی بنا رہے گا۔ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں تک وہ کھانا نہیں کھاتے اور فاقہ کشی رہتی ان کے گھروں میں، اور چولہے نہیں جلتے۔ تو در حقیقت اس کے پیچھے لوگوں کا کہنا ہے، رائے ہے کہ بہت ہی غربتی، اور ہمارے معاشرے کے مولوی یا ہمارے معاشرے کے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ غربت جھیلی ہے اور بہت ہی فاقہ کشی کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، غربت، فاقہ کشی ان پر آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا، اور پوری کائنات کے خزانے ہمارے آقا ہمارے مولا کے اختیار میں تھے۔ لیکن ہمارے آقا ہمارے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ غربتی والے دور اور وہ فاقہ کشی کرنا، وہ در حقیقت وہ ان کا اپنا ایک ذاتی علم، روحانی علم کا نچوڑ تھا، ایک نتیجہ تھا جو انہوں نے اپنی جیون میں خود راضی خوشی اختیار کر رکھا تھا۔ ہمارے آقا ہمارے مولا نے اپنی جیون میں لاگو کر رکھا تھا، وہ اپنی خوشی سے وہ لاگو کر رکھے تھے، کیونکہ وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے علم تھے، جسے راہ فقر کہتے ہیں، فقر کی منزل، روحانیت کے منزل پہ عمل پیرا رہنا، اور اس دنیا کو، دنیا فانی کو جو زیادہ ترجیح نہ دینا، اس پہ زیادہ لو نہ لگانا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے تو بندوں کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں فرمایا یہ بات کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک دھوکہ ہے، اس دھوکے کے میں گم مت ہو جانا اور اپنے رب کو بھلا مت دینا۔ تو یہ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا تھوڑی پڑے گا،
बताना थोड़ी पड़ेगा। वो तो दुनिया के हालात वो पूरी तरह से हकीकी बातें जानते और समझते थे, और वो तो बल्कि आगे का आने वाला हाल बताते और जानते थे कि आगे आने वाले दौर में आज से 1450 साल पहले 1450 साल बाद क्या होगा, क्या होने वाला है, लोग कैसे कैसे लोग निकलेंगे और किस तरह से दिन में फितना होगा, किस तरह से लोग फिर के बारियत में उतर जाएंगे। ये सब तो हुजूर हमारे आका मौला ने वो वक्त अपने दौर में ये पेशन गोई कर दी थी, बता दी थी। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने की और जताने की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी कि ये दुनिया फितना है और ये दुनिया फ़ानी है और ये दुनिया के नज़ारे, दुनिया की नेमतें, आल औलाद एक धोखा है, एक आजमाइश है। ये बताने की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी, वो तो बाखूबी जानते थे। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हमारे आका हमारे मौला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हुजूर की उम्मतों को बताने का हुक्म अल्लाह ने फरमाया कि फरमा दें और जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाएं कि इस दुनिया के धोखे में रहकर अपने रब को ना भुलाएं। तो लोग जो है उनकी बातों पर जो किनात किए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़ाहिरी इल्म, जो शरीयत का इल्म है, उस इल्म के साथ साथ रूहानी इल्म भी, उनका जाती इल्म भी जिन लोगों ने अपनाए वही कामिल अकमल बनकर उभरे और बड़े बड़े वलियों से भी आला मकाम दर्जे हासिल कर गए। तो ऐसे लोग थे। और जिन लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इल्म, सिर्फ जुबानी इल्म, वो ज़ाहिरी इल्म पर ही किनात करके रहें, शरीयत के इल्म पर ही टिके रहें, ये सोच करके कि अगर मैं रूहानी इल्म, इनकी जाती इल्म इख्तियार करूँगा जो तौर तरीके ख़ास सरकार के हैं, अगर इस पर भी मैं अमल पैरा रहूँगा तो फिर मेरे भी हालात ज़िंदगी कुछ सरकार के जैसा ही होंगे और हमें भी दुख मुसीबतों का सामना, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे सोच थे लोगों का। तो वो लोग दुनियादार टाइप के लोग थे। जो दुनियादार थे उन लोगों को सिर्फ भाया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी बताई हुई जुबानी इल्म ही उन्हें पसंद आया, रास आया और उसी पर उन लोगों ने किनात करके रहे। और जो लोग यकीन जाने, जिन लोगों ने इसी इल्म पर, इस शरीयत के इल्म पर ही जिन लोगों ने किनात करके रहे, जो दुनियादार टाइप के लोग थे, ऐसे लोग ही कोई मुनाफिक बने, कोई ख्वारिजीन बने, ऐसे लोग ही मुनाफिक बने, ख्वारिजीन बने और हत्ता के काफिर भी बने। इन्हीं में से मुनाफिक और ख्वारिजीन और काफिर भी बने, इन्हीं में से जो ज़ाहिरी इल्म पर ही किनात करके रहें। और इन्हीं में से वो 72-73 फ़िरक़ों में हुजूर के बाद आज बढ़ गए, जो सिर्फ ज़ाहिरी इल्म पर ही, ज़ाहिरी उलूम पर ही, शरीयत के उलूम पर ही जो किनात करके टिके रहें और डटे रहें। इन्हीं में से आज इस दौर में 72-73 फ़िरक़ों में लोग बढ़ गए। कारण क्या है? आज के दौर के लोग भी, उनके ख्यालात भी वही है। अरे बोलते हैं जुबान से और हुजूर के नारे लगाते हैं और हुजूर की मोहब्बतों का दम भरते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो ज़ाहिरी जुबानों से करते हैं, अपने जिस्म से करते हैं, मोहब्बत के दीवाने भी बने रहते हैं। लेकिन इतनी तुम्हें मोहब्बत है, इतनी आका से दीवानगी है, तो फिर हमारे आका हमारे मौला के वो जो ख़ास इल्म थे उसे अपनाने में तुम्हारी हालत पस्त क्यों हो जाती है? उसे अपनाने में तुम्हारी हालत क्यों ख़राब होती है? तुम उसे क्यों नहीं अपनाते हो? तुम उसे अपनाने में क्यों कतराते हो, क्यों डरते हो? इतने दीवाने हो अपने आका के, इतने दीवाने हो अपने मौला के, इतनी दीवानगी रखते हो, दुरूद सलाम सुबह शाम पढ़ते भी हो और हर वो शरीयत के अमल पर ही तुम, शरीयत के जो अहकामात है उस पर अमल पायरा रहते हो, तो फिर हुजूर पाक का जो जाती इल्म था, जो बातनी इल्म था, उस पर तुम्हें अमल करने में, उस पर चलने में तुम्हें शर्म क्यों आती है? कारण है कि तुम्हारी हिम्मत टूट जाती है ये देखकर और ये सोच करके कि ये रहमानियत इख्तियार करूं, राह फ़क्र इख्तियार करूं, रूहानियत इख्तियार करूं, ये फ़कीरों की रास्ते इख्तियार करूं, इसमें तो काफ़ी जो है नफ्स को मारना पड़ेगा, हर ख्वाहिशात से अपने मन को मारना पड़ेगा, गला घोटना पड़ेगा, हर चीज़ से हमारे मन, हमारी ख्वाहिशात वंचित हो जाएंगे, ये मज़े हमें नहीं मिलेंगे। इस वजह से अपने मज़े, अपने ये जीभ के स्वाद भुलाने के डर से तुम आका हमारे मौला के वो रास्ते, वो जो बातनी रास्ते हैं, जो बातनी उलूम है, रूहानी तालीम है, उसे तुम नहीं अपनाना चाहते। क्योंकि नहीं अपनाओगे तो कामयाब भी नहीं हो पाओगे, नहीं अपनाओगे तो कामयाब भी नहीं हो पाओगे। क्योंकि कामयाबी का दर हकीकत रास्ता जो है वही है कि इल्म शरीयत के साथ साथ इल्म तरीक़त भी अपनाना। और शरीयत अधूरा है तरीक़त के बगैर। इतना जान लो कि इल्म तरीक़त के, तुम लोग कहते हो कि शरीयत में ही तरीक़त है, ऐसा सोचना, ऐसे जो तुम्हारे जहन में ये बात बिठा दिए गए हैं, ये तुम्हारे लिए गलत है सोच और तुम्हें जहन में ये बात बिठा दिए गए हैं।
ताकि अपने आयबों को छिपाया जा सके और अपनी जो कमजोरी, अपनी जो सुस्ती है, काहलियत है, उसे दबाया जा सके। इस वजह से लोगों ने क्या किया, मुफस्सिरों ने क्या किया कि इस तरह के बातें लोगों के जहन में भर दी हैं, किताबों में लिख दी हैं कि शरीयत में ही इल्म है। लेकिन ऐसा नहीं है। शरीयत और तरीक़त एक दो राह है, दो रास्ते हैं जो आपको, ये शरीयत की तालीम दुनियावी जिस्मानी तालीम है, इस दुनिया की तालीम है। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप परहेजगार बन जाएंगे, नमाजी बन जाएंगे, रोज़ेदार बन जाएंगे, इबादत गुजार बन जाएंगे। लेकिन इस जिस्मों से, लेकिन ये जिस्म का साथ छूटा तो सब यहीं रह जाएगा। वहाँ के लिए जो तैयारी करनी है, उसके लिए हमें याद रखना चाहिए कि इस जिस्म के अंदर हमारे लताइफ हैं, हमारे रूह हैं, हमारे नफ्स हैं। वहाँ की तैयारी, ये जिस्म के अंदर जो रूहें हैं, जो लताइफ हैं, जो नफ्स है, उस पर भी हमें काम करना है। वहाँ की तैयारी के लिए, रोज़े आखरत के लिए, यौम आखरत के लिए हमें तैयारी करनी है। तो हमारे अंदर की जो रूहें हैं, उस पर भी हमें काम करना है। और हमारे आका, हमारे मौला ने दो तरह की तालीम चलाई है। एक इल्म शरीयत चलाई है, एक इल्म तरीक़त चलाई है। और उन्होंने फरमाया भी है कि इस्लाम के दो पर हैं, अगर दोनों में से कोई बंदा एक पर लगाता है, सिर्फ एक इल्म पर ही, एक शरीयत पर ही किनात करके रहता है, तो फिर वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, कभी परवाज़ नहीं कर पाएगा, और वो यूं ही दुनिया में भटकता रह जाएगा, कभी वो उरूज पर नहीं जाएगा। तो मरने के बाद हमारे ये जो अमल हैं, ये जो नेकी हैं, ये जो जिस्मानी जो इबादतें हैं, रियाजतें हैं, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये मिलेगा कि हमें हमारी बख्शिश हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम जन्नत के तालिबगार हो जाएंगे, जन्नत तक पहुंच जाएंगे। जन्नतों में हमें निचला दर्जे का कोई मकाम, कोई ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन दर्जात नहीं मिलेंगे। दर्जात बुलंद होते हैं अंदर की रूहों पर काम करने से, रूहों को बेदार करने से, जो हमारे आका, हमारे मौला ने दूसरी तालीम के ज़रिए लोगों को सिखाया। मौला अली के ज़रिए वो तालीम चलाई। आप क्यों भूल जाते हैं, क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं? आपके अंदर सुस्ती भरी हुई है, आपके अंदर वो काहलियत है जिसकी वजह से आप अपनाने से डरते हैं, कतराते हैं कि जीभ का स्वाद हमारा चला जाएगा, जीभ के स्वाद, हमारे मुंह के स्वाद, हमें दुनिया की लज्जत से हमें वंचित होना पड़ेगा, हमें ये सब तर्क करना पड़ेगा, हमको तर्क दुनिया होना पड़ेगा मन से। इस वजह से आप डरते हैं, आप हुजूर के वो रूहानी इल्म नहीं अपनाते हैं और लोगों में ढिंढोरा पीटते हैं, दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं अपनी मोहब्बत का, हुजूर की दीवानगी का। ये कैसी दीवानगी है, कैसे मोहब्बत है? मोहब्बत तब तक आपका जो है ना मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि आप अगर अपने आका, अपने मौला का वो जाती इल्म, वो जाती तौर तरीक़ा, जो उनका जो अपना ख़ास इल्म था, बातनी इल्म, रूहों पर काम करना, नफ्स को बेदार करना, नफ्स को कलमा पढ़ाना, कल्ब को बेदार करना, अगर ख़ास उस इल्म पर आपने काम नहीं किया तो फिर आप कैसे दीवाने हैं, कैसी आपकी मोहब्बत है? सूफिया इकराम से ताल्लुक़ जोड़ना, सूफिया इकराम के नक्श व कदम पे चलना, ये है हमारे आका, हमारे मौला की जो जाती इल्म।